Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English Collection. Today I have brought an interesting lesson for you with vivid examples. We will do some conjugation with the different forms like this. So keep following me, keep listening me. Let's get started. The first thing that is over here, abuse, गाली देता हूँ. With the second form, abused, गाली दे. And the third form, have abused, गाली दे चुका हूँ. Accept, कबूल करता हूँ. Accepted, कबूल किया. And then have accepted, कबूल कर चुका हूँ. With some example sentences. They accept my request. वो मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करते हैं. This is the first form of the verb that is meaning like ता है, ती है, ता हूँ. Accept, कबूल करता हूँ. I accept, मैं कबूल करता हूँ. We accept, हम कबूल करते हैं. You, तुम. They accept, वो कबूल करते हैं. They accept my request, वो मेरी दरख्वास्त कबूल करते हैं. Similarly, if we jump all over the second form, it will change its meaning. How? Accepted, कबूल किया. We accepted, हमने कबूल किया. You accepted, तुमने कबूल किया. They accepted my request, उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की. With the variation of those two verbs, first form and the second form. First form meaning is कबूल करते हैं. The second form that is meaning like कबूल किया. आज, कल, हर रोज़ कबूल करते हैं. कल कबूल किया था. These are the variations. Now let's move forward and jump to the third form that is meaning like कबूल कर चुके हैं. They have accepted my request. This is the third form. कैसे पता चला? have लगा के. और उसका मीनिंग क्या बना? चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुका हूँ. So here I can mean it like this. थर्ड फॉर्म के ज़माने में हम कहते हैं कबूल कर चुके हैं. I have accepted, मैं कबूल कर चुका हूँ. You have accepted, तुम कबूल कर चुके हो. हम ये नहीं कह सकते कि I accepted, मैं कबूल कर चुका हूँ, क्योंकि I accepted का मतलब मैंने कबूल किया था. But here I'm with a different story, different form, that is have. Typically we need to use have. हमें have का इस्तेमाल करना होगा. So they have accepted my request, वो मेरी दरख्वास्त कबूल कर चुके हैं. Now let's move over number 4, that is called fourth form. इसको gerund भी कहते हैं, continuous form भी कहते हैं. और जब भी ing का इस्तेमाल हो तो ये चौथी फॉर्म रहा है की तरफ, कंटिन्यूटी की तरफ आएगी. मीन्स समथिंग इज कंटिन्यूइंग, लाइक कुछ चीज़ जारी है. फॉर एग्जाम्पल, they are accepting my request, वो मेरी दरख्वास्त कबूल कर रहे हैं. Have you got it? So accept कबूल करता है, करते हैं. They accept my request, वो मेरी दरख्वास्त कबूल करते हैं. They accepted my request, उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की. They have accepted my request, वो मेरी दरख्वास्त कबूल कर चुके हैं. So they are accepting my request, वो मेरी दरख्वास्त कबूल कर रहे हैं. Let's jump back to the main chart of the verbs. Accuse, इल्ज़ाम लगाता हूँ, इल्ज़ाम लगाती है, इल्ज़ाम लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हैं. लाइक ता है, ती है with the ending sound. Accused, this is a second form, that means इल्ज़ाम लगाया. मैंने, तुमने, हमने. अगर मैं कहूँ I accused, मैंने इल्ज़ाम लगाया. You accused, तुमने इल्ज़ाम लगाया. But if we use have accused, then इल्ज़ाम लगा चुका हूँ. Make it sure that I'm teaching you first form, then second and third with the meanings. First form में accuse,
इल्ज़ाम लगाता हूँ। अक्यूज़ड इल्ज़ाम लगाया था, कल हैव अक्यूज़ड इल्ज़ाम लगा चुका हूँ। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 4, एक्ट, अमल करता हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, एक्ट, अमल करता हूँ, एक्टेड, अमल किया, हैव एक्टेड, अमल कर चुका हूँ। लेट मी डिफाइन यू दिस वर्ब with this. I act, मैं अमल करता हूँ। We act, हम अमल करते हैं। We acted, हमने अमल किया। We have acted, हम अमल कर चुके हैं। We are acting, हम अमल कर रहे हैं। हम आपकी नसीहत पर अमल करते हैं। We act upon your advice. फर्स्ट फॉर्म है, इसकी पहचान है ता है, ती है, ता हूँ। जब आपने कहना हो कि अमल करता हूँ तो देन यू नीड टू यूज़ एक्ट ऑन। वी एक्ट ऑन योर एडवाइस, हम आपकी नसीहत पर अमल करते हैं। सेकंड फॉर्म, वी एक्टेड अपॉन योर एडवाइस और ऑन योर एडवाइस, हमने आपकी नसीहत पर अमल किया। क्या किया? अमल किया। हमने आपकी नसीहत पर अमल किया। We acted upon your advice. This is the second form. अमल करते हैं act on, अमल किया acted on. Let me show you the variation between first form and the second form, how the meaning changes. Like act on, अमल करते हैं, acted on, अमल किया था. Now let's jump to third form, that is telling you the meaning चुके हैं. चुके हैं. We have acted on your advice, हम आपकी नसीहत पर अमल कर चुके हैं. Forget about के हम इसमें have नहीं लगाएंगे, have लगाना है. Make it show. Have acted on your advice, हम आपकी नसीहत पर अमल कर चुके हैं. Using fourth form of the verb. The fourth form that is telling you that something is continued, going on, जारी है, रहा है, रही है. जब हमने कहना हम नसीहत कर रहे हैं, सो देन वी आर एक्टिंग ऑन. जिस तरह से हम थर्ड फॉर्म को बिना हैव के इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह फोर्थ फॉर्म को इज़, एम या आर के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते. बिना हैव, हैज़, हैड थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होती, और बगैर इज़, एम, आर हम चौथी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते. सो कीप इट शो. एक्ट ऑन, अमल करते हैं, एक्टेड ऑन, अमल किया, हैव एक्टेड ऑन, अमल कर चुके हैं, एक्टिंग ऑन, अमल कर रहे हैं. Here we have admire, यानी तारीफ़ करना, appreciate करना. I appreciate you on your good work, मैं आपके अच्छे काम पर आपकी तारीफ़ करता हूँ. I admired, मैंने तारीफ़ की, मैंने सराहा. My student, अपने स्टूडेंट को. Yesterday, कल. Today morning, आज सुबह. A few days ago, कुछ दिन पहले. I have admired of your good work, मैं आपके अच्छे काम को सराह चुका हूँ, appreciate कर चुका हूँ. Many times, कई बार. Whenever you do, जब कभी आप कुछ करते हो. Whenever you do something good, जब आप कुछ अच्छा करते हो. I always admire you, मैं आपको हमेशा सराहता हूँ. I have admired you in the past, मैं पास्ट में आपका कई दफ़ा तारीफ़ कर चुका हूँ. Let's use the sixth verb with the three forms and the meanings. Admit, गलती मानना. I admit, मैं गलती मानता हूँ. I admitted, मैंने गलती मानी. कल, I have admitted, मैं गलती मान चुका हूँ. Let's use examples. I admit my fault, my mistake. मैं अपनी गलती मानता हूँ. इसको कन्फेस भी कहते हैं. कन्फेस करना मीन इकरार करना. जब किसी से कोई जुर्म होता है तो देन उसको कन्फेस करना भी होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, वरना उसको सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक वो अपनी ज़बान से और रिटन में ना लिखते कि मैंने ये काम किया है, जब तक वो एडमिट ना करे. और सिमिलरली अगर हम इसको कहते हैं इकरारनामा और इसको कन्फेस कहते हैं. आई एडमिट माई फॉल्ट, मैं अपनी गलती मानता हूँ. आई एडमिटेड माई फॉल्ट, मैंने अपनी गलती मानी थी. बहुत आली ज़र्फ़ होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं, गलती करके गलती पे शर्मिंदा
होते तो हैं और गलती भी मानते हैं। आई हैव एडमिटेड, मान चुका हूँ, गलती तस्लीम कर ली है। आई एम एडमिटिंग माई फॉल्ट, मैं अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ। कंटिन्यू प्रोसेस। So here we have admit with a second meaning, that is also same spellings, same pronunciation, admit, admit, admit गलती मानना और admit ही दाखिल करना, मीन्स वो मरीज़ को, जो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और इसके मीनिंग में इस तरह से समझ आएगी, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। और अगर मैं कहूँ आई एडमिट, इसका मतलब यही है कि मैं गलती मानता हूँ। लेकिन अगर दाखिला करने के मीनिंग में आपने सुना हो या बोला हो तो ये लाजमी होगा किस चीज़ को एडमिट किया, और ये लाजमी ऑब्जेक्ट मांगती है। मरीज़ को दाखिल किया, मुर्गी को दाखिल किया, किसी जानवर को दाखिल किया, किसी स्टूडेंट को मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अकेडमी में दाखिल किया, एडमिटेड, यानी आई एडमिटेड द स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट को दाखिला दिया। द डॉक्टर एडमिट्स द पेशेंट, डॉक्टर मरीज़ को दाखिल करता है। एडमिटेड दाखिल किया, हैव एडमिटेड दाखिल कर चुका हूँ। इसको गौर से सुनिएगा। आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानी। आई एडमिटेड द स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट को दाखिल किया। आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक मैनी टाइम्स, मैं अपनी मिस्टेक्स कई बार तस्लीम कर चुका हूँ। आई हैव एडमिटेड द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को दाखिला दे चुका हूँ। ना एडवाइस, नसीहत करता हूँ। एडवाइज्ड नसीहत की, हैव एडवाइज्ड नसीहत कर दी है। एंड देन लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। एडवाइस मतलब नसीहत करता हूँ। आई एडवाइस यू विद द फर्स्ट फॉर्म, मैं आपको नसीहत करता हूँ। आई हैव एडवाइज्ड यू, मैंने आपको नसीहत की थी। आई एडवाइज्ड यू, मैंने नसीहत की थी। आई हैव एडवाइज्ड यू, मैं आपको नसीहत कर चुका हूँ। आई एम एडवाइजिंग यू, मैं आपको बार बार नसीहत किए जा रहा हूँ। So these are the 4 variations, like 4 forms with the different meanings that you need to understand by listening again and again. So let's use the last form of verb of the day, that is second last, agree, राज़ी होता हूँ। agree होना, राज़ी हो जाना, मुतफिक हो जाना किसी के बयान से, किसी की बात से, और किसी को हेल्प करने के लिए भी agree होना, किसी को फेवर देने के लिए, किसी का काम करने के लिए। आई एग्री, मैं राज़ी होता हूँ। आई एग्रीड, मैं राज़ी हुआ कल। आई हैव एग्रीड, मैं राज़ी हो चुका हूँ। आंसर, जवाब देता हूँ। आंसर्ड, जवाब दिया। हैव आंसर्ड, जवाब दे दिया। नाउ जस्ट अलाउ मी टू हेल्प यू, जस्ट सुनते जाइएगा क्योंकि मैंने सेंटेंस को जो है वो फिनिश करना है लेक्चर को। आई अब्यूज़, मैं गाली देता हूँ। आई अब्यूज़ड, मैंने गाली दी थी। आई हैव अब्यूज़ड, मैं गाली दे चुका हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करता हूँ। आई एक्सेप्टेड, मैंने कबूल किया। आई हैव एक्सेप्टेड, मैं कबूल कर चुका हूँ। आई अक्यूज़, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ। आई अक्यूज़ड, मैंने इल्ज़ाम लगाया था। आई हैव अक्यूज़ड, मैं इल्ज़ाम लगा चुका हूँ। एक्ट, अमल करता हूँ। एक्टेड, अमल किया। हैव एक्टेड, अमल कर चुका हूँ। एडमायर, तारीफ़ करता हूँ। एडमायर्ड, तारीफ़ की। हैव एडमायर्ड, तारीफ़ कर चुका हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती मानी। आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ। द डॉक्टर एडमिट्स द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करता है। द डॉक्टर एडमिटेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज़ को एडमिट किया। द डॉक्टर हैज़ एडमिटेड द पेशेंट, डॉक्टर मरीज़ को दाखिल कर चुका है। आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। वी एडवाइस यू, हम तुम्हें नसीहत करते हैं। यू एडवाइस अस, तुम हमें नसीहत करते हो। आई एडवाइस, मैं नसीहत करता हूँ। आई एडवाइज्ड, मैंने नसीहत की। आई हैव एडवाइज्ड, मैंने नसीहत कर दी है। एग्री, मुतफिक होता हूँ, राज़ी होता हूँ। आई एग्री, मैं राज़ी होता हूँ। वी एग्री, हम राज़ी होते हैं। यू एग्री, तुम राज़ी होते हो। आई एग्रीड, मैं राज़ी हुआ। वी एग्रीड, हम राज़ी हुए। यू एग्रीड, तुम राज़ी हुए।
आई हैव अग्रीड, मैं राज़ी हो चुका हूँ. वी हैव अग्रीड टू गो विद यू, हम आपके साथ जाने को राज़ी हो चुके. आंसर, जवाब देना. आई आंसर, मैं जवाब देता हूँ. आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, मैंने आपके सब सवालात के जवाब दे दिए. आई हैव आंसर्ड, मैं जवाब दे चुका हूँ. So that's all for now. Thanks for being with EA English. Enjoy learning. We shall keep continuing the videos, the serial of the videos that is like conjugation forms of verb sentences with the different meanings with the examples. So enjoy learning with EA English. Allah Hafiz.